حاضرین گرامی، آج میں جس موضوع پر گفتگو کروں گا وہ موضوع جنگ آزادی کے اوپر ہے، کیونکہ ہمارے بہت سے بھائی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جنگ آزادی یہ کوئی بیان نہیں ہے بلکہ یہ سیاسی بیان ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جنگ آزادی کی اگر آپ تاریخ اٹھائیں گے، جنگ آزادی میں کس طریقے سے مسلمانوں کے اکابر و اسلاف نے کس طریقے سے قربانیاں پیش کی اور اس ہندوستان میں انگریزوں کو کس طریقے سے بھگایا، اس کی بڑی لمبی فہرست ہے۔ اگر ایک ایک شخص پر گفتگو کی جائے تو گھنٹوں بھر چلے گی، لیکن آج میں اختصار کے ساتھ جنگ آزادی کے موضوع پر گفتگو کروں گا، کیونکہ اس کی ایک وجہ ہے، اس کا ایک ریزن ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آج کل اگر آپ اسکول اور کالجز میں چلے جائیے، اسی طریقے سے یونیورسٹیوں میں چلے جائیے، یا کسی اور پروگرام میں جو نیتا وغیرہ قائم کرتے ہیں وہاں پر اگر آپ چلے جائیے، وہاں پر جنگ آزادی کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، اور ان پروگراموں میں یہ بتلایا گیا کہ ہندوستان کو کس طریقے سے آزاد کرایا گیا۔ ان میں جو فریڈم فائٹر تھے، جنہوں نے ہندوستان کو آزاد کرانے میں بھومکا نبھائی ہے، ان لوگوں کا نام تذکرہ کیا جاتا ہے۔ آپ اسکول اور کالجز میں چلے جائیے، یا آپ ہی لوگ دیکھ لیجئے، اگر کوئی کسی شخص سے پوچھا جائے کہ مہاتما گاندھی کون تھا، سردار ولبھ بھائی پٹیل کون تھے، اسی طریقے سے جو غیر فریڈم فائٹر تھے ہمارے غیر مسلم بھائی، ان لوگوں کا تذکرہ تو ہم لوگوں کے سامنے آتا ہے، ان لوگوں کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ وہ تھے جنہوں نے ہندوستان کو آزاد کرایا تھا۔ اگر ہم پوچھ لیں ابھی آپ سے کہ فتح علی خان کون تھے، مولانا سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کون تھے، مولانا فضل خیر آبادی کون تھے، مولانا رحمت اللہ کیرانوی کون تھے، تو آپ نہیں بتا پائیں گے، آپ کو معلوم ہی نہیں ان کی تاریخ کے بارے میں۔ اگر میں یہ کہوں کہ اگر ہمارے اکابر و اسلاف نہ ہوتے، اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو ہندوستان آج تک آزاد نہ ہوتا، کیونکہ ہندوستان کی آزادی کی تاریخ اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہندوستان کو آزاد کرانے میں پورے 200 سالہ کا عرصہ گزرا ہے۔ 200 سال ہندوستان غلامی کی زنجیر میں جکڑا ہوا تھا، 200 سال تک انگریز اس ہندوستان پر قابض تھے، لیکن ان 200 سالوں میں اگر کسی نے سب سے پہلے جنگ آزادی کی لڑائی لڑی، اگر کسی نے سب سے پہلے انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کرنے کی طاقت اور صحت کی، تو وہ کون تھے؟ وہ مسلمان تھے۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ تھی کہ انگریزوں کے قابض ہونے سے پہلے ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت تھی، مسلمان اس ملک کے جو حکمراں تھے کون تھے؟ مسلمان تھے۔ اس وجہ سے سب سے زیادہ اگر انگریزوں کے تسلط ہونے کے بعد ظلم برداشت کی تو وہ مسلمانوں کی نہ کی، کیونکہ مسلمان حاکم تھے، حاکم سے محکوم بنے تھے، مسلمان بادشاہ تھے، بادشاہ سے غلام بنے تھے۔ اس وجہ سے اگر سب سے زیادہ کسی شخص کو تکلیف پہنچی تھی، سب سے زیادہ اگر کوئی پریشانی کا سامنا کرنا کسی شخص کو پڑا تھا، وہ مسلمانوں کو پڑا تھا، کیونکہ ایک بادشاہ ہے، بادشاہ سے اگر وہ غلام بن جائے تو اس کو کتنی زیادہ تکلیف ہوگی۔ اس لیے سب سے پہلے جنگ آزادی کی لڑائی اگر کسی شخص نے لڑی تو وہ کون تھے؟ وہ مسلمان تھے۔ کس علاقے سے تھے؟ وہ کوئی اور علاقہ نہیں تھا، وہ کوئی اور صوبہ نہیں تھا، وہ کوئی اور اسٹیٹ نہیں تھا، بلکہ آپ کا یہ بنگال ہے۔ بنگال سے ہی جنگ آزادی کی لڑائی کی آغاز ہوتی ہے۔ کس سن میں ہندوستان آزاد کب ہوا تھا؟ ہندوستان آزاد ہوا تھا 1947، یعنی سن 1947، 15 اگست کے دن ہندوستان آزاد ہوا تھا۔ لیکن جنگ آزادی کی لڑائی شروع کب ہوئی؟ 1754 عیسوی میں شروع ہو گئی تھی۔ سن 1754 عیسوی میں نواب سراج الدولہ کے نانا تھے علی وردی خان، انہوں نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جنگ آرائی کی۔
उस वक्त अंग्रेज हिंदुस्तान आए थे किस मकसद से? वो हिंदुस्तान में आए थे ये बताते थे लोगों से कि हम यहाँ पर बिजनेस करने के लिए आए हैं, हम माशी हालत जो तुम लोगों की बिगड़ चुकी है हम उसको ठीक करेंगे, इसलिए हम हिंदुस्तान आए हैं ताकि हम यहाँ पे बिजनेस शुरू करें। चुनांचे उस बिजनेस की आड़ में उन्होंने हिंदुस्तान पर कब्जा करने की कोशिश की। उसकी शुरुआत कलकत्ता से होती है। कलकत्ता में दो मकामात थे, एक फोर्ट विलियम और एक डायमंड हार्बर। ये दोनों मकामात ऐसे थे जहां पर अंग्रेज रहते थे। वहां पर रहकर वो लोग आपस में मशवरा किया करते थे और ये कहा करते थे कि किस तरीके से हिंदुस्तान पर कब्जा किया जाए। उस सिलसिले में वो लोग आपस में मशवरा तय किया करते थे। चुनांचे नवाब सिराजुद्दौला के नाना अली वर्दी खान ने इस चीज को भापा और समझा और उन्होंने फोर्ट विलियम पर हमला किया और अंग्रेजों को डायमंड हार्बर पर छुपने पर मजबूर कर दिया। चुनांचे उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता नवाब सिराजुद्दौला हुक्मरान हुए। सन 1757 ईस्वी में सन 1757 ईस्वी में जब नवाब सिराजुद्दौला हुक्मरान हुए, नवाब सिराजुद्दौला ने भी वही काम किया जो उनके नाना ने किया था। प्लासी की जंग में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ महाधाराएं की और सन 1757 ईस्वी में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत जबरदस्त जंग की। लेकिन कहते हैं ना, अपने लोगों की गद्दारी की वजह से उनको शिकस्त हुई और मुर्शिदाबाद में उनको शहीद कर दिया गया। इसी तरीके से जब वो लोग अंग्रेज हिंदुस्तान के बंगाल के सूबे पर काबिज हो गए, उसके बाद वो लोग कहां गए? उड़ीसा पर कब्जा किया, इसी तरीके से बिहार में कब्जा किया, इसी तरीके से वो एक एक स्टेज पर कब्जा करते करते वो दक्षिण की तरफ रुख किया। दक्षिण का फरमारवा उस वक्त कौन था? फतेह अली खान। मैं अगर आपसे पूछने लगूं फतेह अली खान कौन है तो आप बता नहीं पाएंगे। फतेह अली खान कौन है? ये हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैहि का नाम है। दक्षिण का फरमारवा कौन था उस वक्त उनके वहां का हुक्मरान कौन था? हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैहि। उन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ 4 जंगें की और वो अंग्रेजों से इस डट के मुकाबला इस तरीके से किया कि अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। चुनांचे सन 1782 ईस्वी में जब वो हुक्मरान हुए, हुक्मरान होने के बाद सन 1783 ईस्वी में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जंग की और अंग्रेजों को शिकस्त हुई। अंग्रेज इस कोशिश में थे क्योंकि वो एक मर्तबा उनसे जंग में हार चुके थे। बदला लेने के लिए उन्होंने क्या किया? जो उनके पड़ोसी थे, उनके फौजी थे, उनको खरीदने लगे, उन पर पैसा खर्च करने लगे, उनको खरीद लिया। खरीदने के बाद 1784 ईस्वी में फिर एक जंग हुई। इस जंग में क्या हुआ? क्योंकि उनके लोग बिक चुके थे, उन्होंने उनके साथ गद्दारी की। गद्दारी की वजह से हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैहि को मुआहिदा करने पर मजबूर कर दिया गया। हजरत टीपू सुल्तान किस बात पर मुआहिदा किए? हजरत टीपू सुल्तान से अंग्रेजों ने कहा कि हमें 3 करोड़ रुपए चाहिए। उनको 3 करोड़ रुपए दिया गया। उसके बाद उन्होंने शर्त रखी, इलाका तुम्हारा है, उसका आधा इलाका हमारे सुपुर्द कर दिया जाए। आधा इलाके को भी सुपुर्द कर दिया गया। फिर एक शर्त ये रखी गई कि तुम अपने 2 बेटों को बतौर यरगमाल, बतौर कैदी हमारे पास भेजो। चुनांचे अपने 2 बेटों को भी बतौर यरगमाल उन्होंने अंग्रेजों को दिया। लेकिन वो चुप नहीं बैठे, उन्होंने जुनूबी हिंद के उमरा और उजारा से इसी तरीके से तुर्की में जो सलीम उस्मानी नाम से उस वक्त का बादशाह था, इसी तरीके से दूसरे बादशाहों से खत तो किताबत की। वो इस वजह से कर रहे थे कि हिंदुस्तान पर अगर अंग्रेज काबिज हो गया सही तरीके से, हिंदुस्तान में बहुत से मजहब के मानने वाले लोग हैं, अलग अलग मजहब के मानने वाले लोग हैं, अगर हिंदुस्तान पर वो लोग काबिज हो जाएंगे तो हिंदुस्तान अपने मजहब के मुताबिक तमाम लोगों को अमल करवाएंगे। इस वजह से उन्होंने जुनूबी हिंद के उमराओं को मशवरा दिया, तमाम लोगों से खत्तो किताबत की, लेकिन जुनूबी हिंद के उमराओं ने भी गद्दारी की। गद्दारी करने के बाद तमाम लोगों ने हामी भर ली। सन 1799 ईस्वी में जंग हुई हजरत टीपू सुल्तान के साथ, लेकिन इस जंग में अपनों की गद्दारी की वजह से 1799 ईस्वी में हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैहि को शहीद कर दिया गया। जब हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैहि को शहीद कर दिया गया
تو 3 दिन तक मैदान जिहाद में हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैह की लाश पड़ी हुई थी। इतना रौब और दबदबा था, किसी की मजाल नहीं थी, किसी की हिम्मत नहीं थी उस लाश के पास जाकर देखे कि जिंदा है या इस दुनिया से रुखसत कर चुके हैं। चुनांचे 3 दिन के बाद अंग्रेज का एक कमांडर था जिनका नाम जनरल हॉर्स था, वो डरते हुए हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह की लाश के पास जाता है, जाकर हिलाकर देखता है। जब देखता है कि ये इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैह जामे शहादत नोश कर चुके हैं, उसके बाद वो चिल्ला कर कहता है कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। क्योंकि सबसे अगर खतरनाक इंसान अंग्रेजों के मध्य मुकाबिल उस वक्त कोई था तो हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह थे। उनके इंतकाल के बाद ये लोग आहिस्ता आहिस्ता सन 1803 तक कहां तक पहुंच गए, दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली जाकर वहां पर जो सरकारी खजाने थे उनको लूटने लगे, क्योंकि नाम की हुकूमत रह गई थी, क्योंकि जो बादशाह था उस वक्त का उनकी कोई बात नहीं चलती थी, वो नाम के बादशाह बने बैठे थे। जो चीज इन लोगों को करनी होती थी अपनी मर्जी के मुताबिक करनी होती थी। तो सन 1803 ईस्वी में इन लोगों ने कहा कि आज से पूरे हिंदुस्तान में हमारी हुकूमत चलेगी, हम जो कहेंगे उसी बात पर तमाम लोगों को हामी भरनी होगी। लेकिन हमारे अकाबिर असलाफ थे उस वक्त शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने एक फतवा दिया। कौन? ये मौलाना थे, मुहद्दिस थे, हदीस के पढ़ाने वाले थे। इन्होंने कहा कि अगर हिंदुस्तान में अंग्रेजों का तसल्लुत हो चुका है, अगर अंग्रेज जो बात कहेंगे उसी के मुताबिक हमें चलना होगा, कि आज से हिंदुस्तान क्या हो गया है, दारुल हरब हो चुका है। दारुल हरब और दारुल इस्लाम में फर्क यह है, दारुल इस्लाम उस मुल्क को कहा जाता है जहां पर इस्लाम के मुताबिक अमल किया जाए, और दारुल हरब ऐसा मुल्क होता है जो काफिरों का मुल्क होता है और उन्हीं के मुताबिक उनको लोगों को जिंदगी गुजारनी पड़ती है। जब अंग्रेजों ने सन 1803 ईस्वी पर अच्छी तरीके से इस हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया, कब्जा करने के बाद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने हिंदुस्तान को दारुल हरब होने का फतवा दे दिया। और दारुल हरब होने का फतवा देने के बाद क्या होता है कि तमाम मुसलमानों पर जंग फर्ज हो जाती है कि वो अपने मध्य मुकाबिल से जंग करे। चुनांचे तमाम लोगों ने मिलकर, तमाम हमारे अकाबिर असलाफ ने मिलकर जंग के खिलाफ महाज आराई की। इसी तरीके से चलता रहा। 1831 ईस्वी में बालाकोट में क्या हुआ? बालाकोट में शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, ये लोग बालाकोट के मैदान में गए। बालाकोट के मैदान में मध्य मुकाबिल कौन था? राजा रंजीत सिंह का बेटा शेर सिंह था। ये कौन था? ये हिंदुस्तानी था, लेकिन अंग्रेज का चापलूस था, अंग्रेज की गुलामी को कबूल करने वाला था। 20,000 फौजों के साथ पहुंचा और मुसलमानों की 3,000 फौज थी। तो सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने राजा रंजीत सिंह के बेटे शेर सिंह से कहा, ए शेर सिंह, तेरा और हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं है, तू भी हिंदुस्तानी है, हम भी हिंदुस्तानी है, हम भी इसी हिंदुस्तान में जन्म लेने वाले हैं, आओ हमारे साथ मिलो, मिलकर इस अंग्रेज को हिंदुस्तान से भगाओ। लेकिन वो मानने वाला नहीं था, क्योंकि वो अंग्रेज का चापलूस था। चुनांचे सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह इसी तरीके से हमारे अकाबिर असलाफ के साथ उस राजा रंजीत सिंह के बेटे शेर सिंह ने जंग की और इन लोगों को शिकस्त हुई, क्योंकि ये लोग कमजोर थे, 3,000 थे, पावर उन लोगों की थी। चुनांचे सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरीके से शाह इस्माइल शहीद और बहुत से लोग बालाकोट के मैदान में शहीद हो गए। मेरा मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, ये तमाम तारीख को बिल्कुल फरामोश कर दिया जाता है, बिल्कुल भुला दिया जाता है। आज इस तरीके से हिंदुस्तान में लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की कोई कुर्बानी ही नहीं है। अगर हम कहेंगे तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा कि 99% अगर किसी शख्स ने शहादत हासिल की है, किसी शख्स ने कुर्बानी दी है इस हिंदुस्तान को आजाद कराने में, तो वो मुसलमान थे। उसके बाद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, शाह इसाक मुहद्दिस देहलवी और उनके शागिर्दों ने एक तहरीक चलाई। उस तहरीक में हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, मौलाना कासिम नानवी, हाफिज जामिन शहीद, मौलाना रशीद अहमद गंगोही,
मौलाना मुनीर नानोतवी, मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी, इसी तरीके से बहुत से उलमा किराम शरीक हुए। शरीक होने के बाद सन 1857 में पूरे हिंदुस्तान में जंग की जाने लगी, पूरे हिंदुस्तान, क्योंकि इन्होंने एक तहरीक चलाई थी हर इलाके में, इस शामली के मैदान में, मुरादाबाद में, अमृतसर में, यानी हिंदुस्तान के अलग अलग मकामात पर अंग्रेजों के खिलाफ जंग की जाने लगी। जब अंग्रेजों के खिलाफ जंग की जाने लगी तो सन 1857 में कितने लोगों को शहादत हुई? सिर्फ मगरबी यूपी में 5 लाख मुसलमानों का कत्लेआम किया गया, सिर्फ मगरबी यूपी में। बहुत से लोग कहेंगे कि तुम अपनी तारीफ बता रहे हो, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि एक हिंदू मुआर्रिख है सेवा रामदेव, उसने ये बात लिखी है कि सन 1857 ईस्वी में जब जंग आजादी की बुगल बजाई गई थी, तमाम लोग जंग में शरीक हुए थे, तो सिर्फ मगरबी यूपी के तकरीबन, वो कहते हैं कि मेरे मुताबिक कम से कम 5 लाख मुसलमानों का कत्ल किया गया था। कौन कहता है? कोई मुसलमान मुआर्रिख नहीं कहता है, कोई मुसलमान तारीख लिखने वाला नहीं कहता है, बल्कि एक हिंदू मुआर्रिख कहता है कि 5 लाख मुसलमान उस जंग में शहीद हुए सन 1857 में। इसी तरीके से और 90,000 सिर्फ उलमा थे, मुफ्ती थे, आलिम थे, हाफिज थे, कारी थे, 90,000 ऐसे थे जो सिर्फ दीन से ताल्लुक रखने वाले हमारे अकाबिर और असलाफ थे। उन्होंने इतनी जद्दोजहद क्यों की थी? इस वजह से की थी कि इस हिंदुस्तान में ताकि मुसलमान आगे चलकर दीन पर कायम रह सके। चुनांचे सन 1857 में जब 5 लाख मुसलमानों का कत्ल कर दिया गया, एक अंग्रेज तारीख लिखने वाला लिखता है मिस्टर थॉमसन, वो कहता है कि इन मौलवियों की जो लाशें थी, लाशों को दरख्तों में लटका दिया जाता था और इन लोगों से कहा जाता था कि हमारे साथ शरीक हो जाओ। कौन कहता था? अंग्रेज कहता था कि हमारे साथ शरीक हो जाओ, लेकिन ये लोग शरीक होने को तैयार नहीं होते और इन लोगों की लाश फांसी के फंदे में तड़प तड़प कर इस तरीके से हो जाती, जिस तरीके से अंग्रेजी में आठ हो जाता है, इस तरीके से तड़प तड़प कर उनकी लाश हो जाया करती थी। लेकिन ये मुसलमान अकाबिर असलाफ और उलमाए किराम ने उन लोगों की बात नहीं मानी। उसके बाद क्या करने लगे अंग्रेज अपने यूरोप से, अपने ममालिक से ईसाई पादरी को लाने लगे। वजह से लाया जा रहा था हिंदुस्तान में, ताकि पूरे हिंदुस्तान का जो नज्म नस्क है, किस तरीके से हिंदुस्तान को चलाया जाए, तमाम लोगों के ज़हन और दिमाग को ईसाई ज़हनियत का हामिल बनाया जाए, तमाम लोगों को ईसाई बनाया जाए। इस वजह से ईसाई पादरी को हिंदुस्तान में लाया जा रहा था। तो हमारे अकाबिर और सलाफ उस वक्त मौजूद थे, अपनी कुर्बानियां पेश करते जा रहे थे और उस वक्त सबसे ज्यादा अगर हुकूमत ने, अंग्रेजों ने किसी चीज को नुकसान पहुंचाया था, वो मदारिस को पहुंचाया था। तो हमारे अकाबिर और सलाफ ने चीज को भापा, भापने के बाद हिंदुस्तान के सहारनपुर में दारुल देवबंद का कयाम अमल में आया। इस वजह से आया ताकि हिंदुस्तान में इस्लाम बाकी रहे। और दारुल देवबंद को आज लोग क्या कहते हैं, आज के हिंदुस्तान में जो हुक्मरां है वो खुद कहते हैं कि ये मदारिस दहशत गर्दी का अड्डा है, यहाँ पर दहशत गर्दी सिखाई जाती है। तो मैं कहता हूँ कि दारुल देवबंद की तारीख को तो पहले तुम पढ़ो, उसकी हिस्ट्री को तो तुम जानो, तब तुम्हें पता चलेगा ये दहशत गर्दी का अड्डा नहीं, बल्कि ये वो इदारा है जहां से मौलाना महमूद हसन देवबंदी खड़े हुए और उन्होंने 40 साल तक खिदमत की, 40 साल तक अंग्रेजों के खिलाफ महाज आराई की, 40 साल तक लोगों में जाकर बयानात की, तकरीरें की, लोगों को इस बात पर आमादा किया कि एक साथ हो जाओ, एक साथ जमा होकर अंग्रेजों के खिलाफ महाज आराई करो। अगर तुम हिंदू हो, अगर तुम सिख हो, अगर तुम ईसाई हो, तुम में से कोई शख्स अपने मजहब पर नहीं चल सकता। अगर ये अंग्रेज इस हिंदुस्तान पर काबिज होते रहे, ना तुम्हें तुम्हारे मजहब के मुताबिक चलने दिया जा सकता है, ना मुसलमान अपने मजहब के मुताबिक चल सकते हैं। इसलिए तमाम लोग मिलो। तो मैं कहता हूं कि दारुल देवबंद की बुनियाद इस वजह से रखी गई थी ताकि हिंदुस्तान से अंग्रेजों को भगाया जा सके, ताकि जो बच्चे उस इदारे में पढ़े, दारुल देवबंद में पढ़े, पढ़कर वहां पर दीन की तालीम हासिल करे, दीन को सीखे, सीखने के बाद अंग्रेजों के खिलाफ महाज आराई करे। और इसी तरीके से होता चला गया। हमारे
اکابر و اسلاف جو دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے، جیسا کہ مولانا حسین احمد مدنی، اسی طریقے سے بہت سے اکابر و اسلاف نے بہت زیادہ قربانیاں پیش کی، اسی ادارے سے نکل کر پیش کی۔ لیکن آج کیا کہا جاتا ہے؟ آج کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں تمہارا کوئی شرکت نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ تاریخ اٹھا کر دیکھو، تاریخ کو پڑھ کر دیکھو، سن 1754 سے لے کر 1831 یہ ایسے 100 سال ہے جس میں تنہا مسلمانوں نے جنگ آزادی کی لڑائی لڑی تھی۔ 1831 سے پہلے میں کہتا ہوں ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں انہیں آزادی کا شعور بھی نہیں تھا، انہیں احساس بھی نہیں تھا، انہیں یہ بھی نہیں معلوم تھا ان انگریزوں کے چنگل سے کس طریقے سے ہم اپنی آزادی حاصل کر سکے، ان کو اتنا بھی احساس نہیں تھا۔ لیکن جس وقت یہ لوگ شریک ہوئے اس وقت ہم نے میدان جہاد کو گرم کر دیا تھا، ہم نے پورے ہندوستان میں میدان جہاد کو الگ الگ مقامات پر گرم کر دیا تھا، انگریزوں کے خلاف تحریکیں چلا رہے تھے۔ اس وقت اگر کوئی شخص تھا وہ مسلمان تھا، اس کے بعد تم لوگ شریک ہوئے، شریک ہونے کے بعد ہمارا ساتھ دیا، تب جا کر 15 اگست 1947 کو ہندوستان آزاد ہوا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے اکابر و اسلاف نے، جیسا کہ میں نے پیچھے کہا کہ صرف ایک جنگ 1857 میں ہندو مورخ لکھتا ہے کہ 5 لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، اس میں 90,000 علماء کرام تھے۔ ان علماء کرام نے اتنی قربانیاں کس وجہ سے پیش کی تھی؟ ہم لوگوں کو اسی طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے نہیں، بلکہ اس وجہ سے ان لوگوں نے یہ قربانیاں پیش کی تھی تاکہ ہم اپنے دین پر قائم رہ سکے، ہم اسلام پر قائم رہ سکے۔ جس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس دین کو پہنچانے کے لیے طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کی، اسی طریقے سے ہمارے اکابر و اسلاف نے بہت سی قربانیاں پیش کی، اپنی جانوں کی قربانی دی، اپنے مالوں کی قربانی دی، اپنے بچوں کو یتیم کیا، اپنے بیوی کو بیوہ کیا، اس وجہ سے کیا تاکہ ہندوستان میں اسلام باقی رہے، ہندوستان میں دین باقی رہے۔ یہ تمام تر قربانیاں اس وجہ سے پیش کی گئی تھی تاکہ ہندوستان میں اسلام باقی رہے۔ کیا آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھیے اور یہ بتائیے کہ ہم اتنی قربانیاں ہمارے اکابر و اسلاف نے جو پیش کی تھی اس کے بعد ہم دین پر قائم ہیں؟ بالکل نہیں ہے۔ 5 وقت کی نماز کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ جمعے میں تو ہزاروں لوگ آ جاتے ہیں، لیکن 5 وقت کی نماز کے لیے کتنے لوگ حاضر ہوتے ہیں؟ ایک صف تک نہیں بڑھتا مسجد کی۔ صرف یہاں کا یہ ماحول نہیں ہے بلکہ ہر گاؤں، ہر علاقہ، ہر قصبے کا یہ ماحول ہے کہ ہماری مسجدیں جو ہوتی ہے بالکل خالی ہوتی ہے، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان پر نماز کو فرض کیا ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھتا تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں کہا گیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے ہم اس پر عمل پیرا ہو، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں کیا کہا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کرو، عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ روزی روٹی کماؤ، لیکن ساتھ ساتھ عبادت بھی کرو تاکہ جہاں پر ہمیں آخرت کی زندگی ملے گی، زندگی بھر وہاں رہنا ہے۔ یہاں پر 60-70 سال کی زندگی ہوتی ہے، آخرت کی لامتناہی زندگی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی، جو کبھی ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے، اس لیے وہاں کے لیے تیاری کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔